Hello guys, welcome back. Today we'll study about emission and absorption spectra, and then we'll study about the emission spectra of hydrogen and the numericals which is based on emission spectrum of hydrogen. So let's get started. Guys, in our previous video, we have studied about electromagnetic spectrum. Now, what is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum है क्या? The arrangement of different electromagnetic radiations on the basis of increasing frequencies or decreasing wavelength is known as electromagnetic spectrum. It means in electromagnetic spectrum हमने different wavelength को क्या किया था, उनके increasing frequency और decreasing wavelength के basis पे arrange किया था. Now there is a device which is used to separate the electromagnetic radiations on the basis of their wavelength is known as spectroscope. Clear? So first of all, we will talk about a device which is known as spectroscope. Now spectroscope is an instrument. Spectroscope जो है वो एक instrument है which separates the different electromagnetic radiations on the basis of their wavelength. Different wavelength के basis पे different electromagnetic radiation को spectroscope क्या करता है? Separate. Now this electroscope consists of prism. इस इलेक्ट्रोस्कोप में क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रिज्म प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रिज्म? दिस प्रिज्म इज यूज्ड फॉर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट. जो लाइट इसमें आएगी उसको डिस्पर्स करने का काम हमारा कौन करेगा? प्रिज्म. सो स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म which is used for the dispersion of the light, and then this spectroscope consists of a telescope. उसके बाद इसमें क्या होता है? टेलीस्कोप होता है. And what is the role of this telescope? This telescope is used to examine the emergent radiation by the human eyes. ठीक है, जो emergent radiation हमारी रिलीज होती है, जो रेडिएशन हमारी रिलीज होती है, उसको एग्जामिन करने का काम कौन करता है? हमारा telescope. Examine emergent radiation. So what is a spectroscope? An instrument which is used to separate different electromagnetic radiations on the basis of different wavelength is known as spectroscope. This spectroscope consists of prism which is used for the dispersion of the light, and telescope which is used for examine the emergent radiation by the human eye. But if this telescope, अगर ये जो टेलीस्कोप है, if this telescope is replaced by, अगर ये टेलीस्कोप हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? By a photographic film. Photographic film. If this telescope is replaced by a photographic film, then this spectroscope is known as spectrograph. तब इस स्पेक्ट्रोस्कोप को हम स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोग्राफ. इट मीन्स स्पेक्ट्रोग्राफ इज an instrument which is used to separate different electromagnetic radiation on the basis of different wavelength. But this spectrograph consists of prism and photographic film, but spectroscope consists of prism and telescope. और जो ये फोटोग्राफिक फिल्म में जो हमारी फोटोग्राफ आएगी, यानी जो हमारा डिफरेंट पैटर्न आएगा, दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ. उसको हम क्या कहेंगे? फोटोग्राफ नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? स्पेक्ट्रोग्राफ. जस्ट लाइक व्हेन वी आर क्लिकिंग आवर फोटो विद अ कैमरा, सो जो हमारे पास आती है इमेज, वी कॉल दैट फोटोग्राफ. हम उसे फोटोग्राफ कहते हैं. सिमिलरली बाय यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म, जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करेंगे तो जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म में इमेज आएगी उसको हम फोटोग्राफ नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ईदर स्पेक्ट्रोग्राफ और सिंपली स्पेक्ट्रम. Clear? Either spectrograph or simply spectrum. Now, the science which deals with the study of the spectrum is known as spectroscopy. Is known as spectroscopy. जो साइंस किसके साथ डील करती है? Which deals with the study of spectrum. जो स्पेक्ट्रम की स्टडी के साथ डील करती है, that science is known as spectroscopy. So in this topic we have to study two different types of spectrum: emission spectrum and absorption spectrum. Clear? So spectroscope
एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ सेपरेट करता है. दिस स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है. वन इज प्रिज्म एंड अनदर वन इज टेलीस्कोप. प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करने का काम करता है, और टेलीस्कोप क्या करता है, जो प्रिज्म से बाहर रेडिएशन निकल रही है वो रेडिएशन कैसी निकल रही है उन्हें एग्जामिन करने का काम कौन करता है, टेलीस्कोप. इफ टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, अगर टेलीस्कोप की जगह हम फोटोग्राफिक फिल्म को यूज करें, देन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ. इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं. एंड द फिल्म विच वी गेट, जो फिल्म हमें मिली है, जो पिक्चर हमें मिली है, जो इमेज हमें मिली है, दैट इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोग्राफ और सिंपली स्पेक्ट्रम. एंड द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो next we will talk about two different types of spectrum, that is emission spectrum and absorption spectrum. First is emission spectrum. Emission spectrum. Now emission spectrum, what is emission spectrum? Emission spectrum है क्या, a spectrum which is obtained of that radiation which is emitted from the source. When a white light is dispersed from, when a white light come from any source is passed through the prism and then examined in the photographic film, that is known as emission spectrum. Clear? जब हमारी कोई भी लाइट आपकी डायरेक्टली किसी सोर्स से आती है, सोर्स से आने के बाद वो लाइट किससे टकराती है, प्रिज्म से, और प्रिज्म से जब वो लाइट बाहर निकलती है उसको जब हम एग्जामिन करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम. मींस लाइट हमने जो एग्जामिन की है वो डायरेक्टली एमिट हुई है, और एमिट लाइट को हमने क्या किया है, एग्जामिन किया है. क्लियर? नाउ दिस एमिशन स्पेक्ट्रम, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, दिस एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सोर्स. Whenever a light come from the source, pass through the prism and examine on the photographic film, then the spectrum obtained is called emission spectrum. Clear? Now depending upon the type of the white source, जो white source है, white source के type पे हम emission spectrum को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. One is continuous spectrum and second one is line spectrum. Clear? First we will talk about continuous spectrum. Now suppose a white light from any source like sun or bulb or any heating body. ठीक है, आपका सन ले लो या कोई बल्ब ले लो या कोई भी हीटिंग बॉडी ले लो, उससे जब हम क्या करेंगे, व्हाइट लाइट पास करेंगे थ्रू अ प्रिज्म. क्लियर? प्रिज्म से पास करेंगे, यानी जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट पास होगी. जैसे ही व्हाइट लाइट आपके प्रिज्म पे टकराएगी, इट गेट डिस्पर्स्ड. ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स्ड हो जाएगी. एंड इट गेट डिस्पर्स्ड इन 7 डिफरेंट कलर्स. ये किन डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, इन 7 डिफरेंट कलर्स. 7 डिफरेंट कलर्स. क्लियर? एंड वी गेट एन इमेज इन द फोटोग्राफिक फिल्म. हमें क्या मिलेगी, एक इमेज मिलेगी, किसमें, फोटोग्राफिक फिल्म में, लाइक दिस, इसमें. क्लियर? एंड इन दिस केस जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, जो डिस्पर्सन होगा, लीस्ट डिस्पर्सन किसका होगा, आपका रेड लाइट का, और मैक्सिमम डिस्पर्सन आपका किसका होगा, मैक्सिमम डेविएशन आपका होगा वॉयलेट लाइट का, एंड मिनिमम डेविएशन होगा आपका रेड लाइट का. क्लियर? बिकॉज रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की रेड के कंपैरिजन में वेवलेंथ क्या होती है, हमारी कम होती है. क्लियर? सो व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, ईदर फ्रॉम बल्ब or sun or any heating body is passed through a prism, it get dispersed into 7 colors, and these 7 colors are so continuous that they merge over each other.
ये जो हमें यहाँ पे 7 कलर मिलेंगे, ये 7 कलर इतने ज्यादा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अरेंज होंगे कि इनका जो मिडिल पोर्शन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे में मर्ज होगा. इट मीन्स वी कांट एबल टू डिफरेंशिएट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द वॉयलेट एंड द इंडिगो और द बॉर्डर लाइन बिटवीन द ऑरेंज एंड द रेड. मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी कि मेरा ऑरेंज यहाँ तक है और रेड यहाँ से स्टार्ट है, बिकॉज दे आर मर्ज ऑन ईच अदर. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा. मीन जो फोटोग्राफिक फिल्म में हमें जो आपकी लाइंस मिल रही हैं या जो बैंड्स हमें मिल रहे हैं, वो कैसे बैंड्स मिल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बैंड्स. क्लियर? सो व्हेनेवर व्हाइट लाइट कम फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जब व्हाइट लाइट किससे टकराती है, प्रिज्म से, तो वहां पे व्हाइट लाइट का क्या होता है, डिस्पर्शन होके वो 7 कलर्स में कन्वर्ट होती है, 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, और वो 7 कलर्स के जो बैंड हमें मिलते हैं वो इतने कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा, line spectra. Now what is line spectra? Whenever a light from any volatile salt or whenever a radiation from any volatile salt keeping in a Bunsen flame or a radiation coming out from the discharge tube in which a gas is taken at a low pressure. ठीक है, आपने क्या किया है, बंसन, आपका एक बंसन फ्लेम है like this, ये बंसन फ्लेम है. बंसन फ्लेम के ऊपर आपने एक फिलामेंट में क्या रखा है, सपोज आपका वोलेटाइल सॉल्ट, ठीक है. एंड सेकंड में आपके पास यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब में आपने क्या फिल कर रखी है, एनी गैस, एंड द प्रेशर इज लो. क्लियर? इन बोथ द केस रेडिएशंस आर एमिटेड. ठीक है, इसमें भी रेडिएशंस एमिट होंगी एंड इसमें भी हमारी क्या होंगी, रेडिएशंस एमिट होंगी. सो व्हेनेवर द रेडिएशन फ्रॉम volatile salt or the gas taken in a discharge tube at low pressure is passed through the prism and examined in the photographic film. और जब हम उसको फोटोग्राफिक फिल्म में क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, we get specific line at specific wavelength. हमें क्या मिलती हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइंस मिलती हैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे. क्लियर? एंड दोज लाइंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ये जो लाइन हमें मिल रही है, ये लाइन हमें किस पे डिपेंड करेंगी, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेंगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सपोज आई एम टेकिंग NaCl, मैंने सोडियम का सॉल्ट लिया है. क्लियर? सोडियम का सॉल्ट. नाउ ऑन हीटिंग इट गेट वेपराइज. इससे मेरी क्या रिलीज हो रही है, रेडिएशंस एमिट हो रही हैं. रेडिएशंस एमिट होने के बाद किससे टकराएंगी, हमारे प्रिज्म से, बिकॉज इन स्पेक्ट्रोस्कोप द फर्स्ट थिंग इज प्रिज्म. ठीक है. देन ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म, जैसे ये प्रिज्म से पास होगी, फोटोग्राफिक फिल्म में हमारी क्या बनेंगी, दो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनती है, येलो लाइट्स, एंड दीज लाइट्स एट 5890 एंगस्ट्रॉम and 5896 angstrom. Means whenever I take sodium salt, ठीक है, whenever I take a sodium salt, the radiations emitted from that sodium salt when passes through the prism and examined in the photographic film, I always get two different lines at the yellow portion, one at 590 angstrom and another at 5896 angstrom. एंड अगर मैं यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ना लू, इंस्टीड ऑफ सोडियम सॉल्ट इफ आई टेक पोटेशियम सॉल्ट, इफ आई टेक पोटेशियम सॉल्ट, अगेन आई गेट अ लाइन, मुझे लाइन मिलेगी, बट दैट लाइन कम्स इन वॉयलेट रीजन. क्लियर? ये लाइन जो आ रही थी वो कौन से रीजन में थी, हमारी येलो रीजन में. येलो रीजन में कब थी ये, व्हेन आई एम टेकिंग द सोडियम सॉल्ट. बट when I am taking the potassium salt, वहां पे हमारी क्या हो रही है, वॉयलेट रीजन्स में मुझे क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है. दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम.
एंड लाइन स्पेक्ट्रा इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा. ठीक है, जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो एक फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा की तरह भी काम करता है. बिकॉज वी ऑल नो दैट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स हर किसी के जो आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. सिमिलरली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके आपके जो रीजन होंगे लाइन फॉर्मेशन के वो भी क्या होंगे, अलग अलग. जस्ट लाइक सोडियम in yellow region, potassium in violet region, any other element in any other region. So in continuous spectra I get a continuous line which are merge over each other. ठीक है, मुझे continuous lines मिलेंगी different colors की जो एक दूसरे में merge होंगी. But in line spectra I get separate lines at separate wavelength. Clear? And ये कब मिलेंगी? In continuous spectra I am taking a complete white light. मैं एक white light को ले रही हूँ. But in line spectra I am taking either a volatile salt in a Bunsen flame or a gas in the discharge tube at a low pressure. This is known as line spectra. But दोनों के केस में मैंने किसको स्टडी किया है, एमिटेड रेडिएशंस को. यानी व्हाइट लाइट से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनको मैंने डायरेक्टली स्टडी किया है, और वोलेटाइल सॉल्ट से जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उनको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है, स्टडी किया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. Second one is absorption spectra. Now what is absorption spectra? Whenever a white light is first passes through a solution containing any salt, and then the radiation which comes out from that salt is passed through the prism and examined in the photographic plate is known as absorption spectrum. It means हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाइट सोर्स जो हमारी व्हाइट लाइट आ रही है उसको डायरेक्टली स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पहले उसको किसी सॉल्यूशन से पास करवा रहे हैं और उसके बाद हम उसकी स्टडी कर रहे हैं किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोप में. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर इज माय व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स. ठीक है, इधर फ्रॉम सन और बल्ब और एनी ग्लोइंग बॉडी. I am using a slit. Why I am using a slit? To get a perfect beam, to get a fine beam of the white light. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, एक स्लिट यूज कर रही हूँ. And then I am passing this light through a solution. Suppose the solution is of NaCl solution. Clear? It means I am passing the light through NaCl solution. Clear? अब जो लाइट यहाँ से बाहर आएगी उसको मैं क्या करूंगी, I'll pass through the prism. ठीक है, what is the role of the prism? It do the dispersion of the light. ये लाइट का डिस्पर्सन करेगा, it get dispersed. ठीक है, अगेन ये हमारी क्या होगी, dispersed होगी. Now in photographic film what I get this colors of the white light, but I don't get yellow color. Means at 5896 angstrom and 5890 angstrom I get डार्क लाइन्स. मुझे डार्क लाइन्स मिलेगी, बाकी में मुझे क्या मिलेगा, येलो कलर. ठीक है, येलो कलर, इंडिगो, ब्लू, येलो की जगह पे मुझे क्या मिलेंगी, मेरी डार्क लाइन्स, ऑरेंज एंड रेड. सो विबग्योर. Clear? Means I get violet color, I get indigo color, blue color, green color, orange color, red color. But in place of the yellow color, I get the dark lines. And ये देखा गया कि जो dark lines हमें मिल रही है यहाँ पे वो exactly उसी प्लेस पे मिल रही है जिस प्लेस में लाइन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल रही थी, लाइन्स. हमने लाइन स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ा था, in a Bunsen flame suppose I am taking NaCl. क्लियर? सो इससे जो हमारी रेडिएशंस एमिट हो रही है मैं उसको किससे पास करा रही हूँ, प्रिज्म से. जैसे ही ये प्रिज्म से पास हो रहा है फोटोग्राफिक फिल्म में हमें क्या मिल रही है, दो लाइन, एंड दीज टू लाइन्स कलर्स आर येलो एंड दीज आर एट द रेंज 5896 एंगस्ट्रॉम एंड 5890 एंगस्ट्रॉम. इट मीन्स
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक कॉम्बिनेशन है किसका? एमिशन का और एब्जॉर्प्शन, बट एमिशन में किसका कॉम्बिनेशन है? वो लाइन स्पेक्ट्रम का। सो वेन एवर अ व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू अ सोल्यूशन, जब सॉल्यूशन से पास होगा, सॉल्यूशन से पास होने के बाद हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो वी गेट द लाइन्स, we get the dark lines in a certain place which spectrum is otherwise continuous in continuous spectra। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ये स्पेक्ट्रम अगर हम इससे पास नहीं करते, हमें ये स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है? कॉन्टिन्यूस, इन विच ऑल कलर्स आर सो कॉन्टिन्यूस दे आर मर्ज ऑन ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ दिस NaCl हमें यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें येलो पोजिशन पे हमें क्या मिली? डार्क लाइट। क्लियर? नाउ सपोज इंस्टीड ऑफ NaCl अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करती? KCl सॉल्यूशन। सो मुझे येलो कलर की जगह क्या मिलता है? येलो कलर, बट इन प्लेस ऑफ द वॉयलेट कलर आई गेट द डार्क लाइन। ठीक है, वॉयलेट कलर में मुझे क्या मिलती? डार्क लाइन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन स्पेक्ट्रम। इन डिटेल वील स्टडी द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था that in line spectrum, when we get line spectrum, either when we take a volatile salt in the Bunsen flame or we take any gas in the discharge tube at very low pressure। तो सेकेंड केस में हम लोग सपोज क्या लेते हैं? सपोज हियर इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। ये इलेक्ट्रिकल सोर्स है हमारा, कनेक्टेड है। क्लियर? एंड इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखी है? हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर। सो when a hydrogen gas is taken in a discharge tube at a low pressure, the light emitted when electric discharge is passed through this discharge tube is examined in the spectroscope, then the spectrum is known as emission spectrum of hydrogen। सो हमने क्या किया है? हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है लो प्रेशर में, और हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे ही हम यहाँ से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, जो लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जो रेडिएशंस यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगी, उस रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे तो जो फोटोग्राफिक फिल्म हमें मिलेगी दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ when we get the emission spectrum of hydrogen, जब हमें emission spectrum of hydrogen मिला, it is found that a number of lines are present in a particular region, in a particular area। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में हमें क्या मिले? मीन्स डिफरेंट वेवलेंथ्स में हमें क्या मिली? डिफरेंट लाइंस विच आर ग्रुप्ड इन अ सीरीज। ठीक है, जो आपकी क्या है? एक ग्रुपिंग की फॉर्म में प्रेजेंट थे। एंड ये जो हमें सीरीज मिली, ये सीरीज बाद में धीरे धीरे ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर्स, जिस डिस्कवरर ने इस सीरीज को डिस्कवर किया उसके बेसिस पे इन सीरीज का क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। सो what is emission spectrum of hydrogen? When a hydrogen is kept in a discharge tube at a low pressure and electric discharge is passed through the discharge tube, the light emitted examined in the spectroscope, and the spectrum which we get is known as emission spectrum of hydrogen। Now when we get the emission spectrum of hydrogen, it is found that a number of lines are present which are grouped together in a particular area, जिनका नाम किसके बेसिस पे दिया गया? उनके डिस्कवरर्स के नेम्स के बेसिस पे। Now you have to learn these 5 areas। इन 5 सीरीज को आपने क्या करना है? लर्न। एंड you also have to know that in which region these series fall। ये जो हमारी सीरीज है ये कौन से रीजन में फॉल कर रही है एंड कौन सी रीजन में आएगी। उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक पढ़ेंगे, और वो ट्रिक क्या है आपकी? ले यूवी विजिबल बैट इन प्रो बिग बैश फेडरेशन। lay UV visible bat in Pro Big Bash Federation। Now L, here is L means lay, Lyman। फर्स्ट सीरीज जो है हमारी वो कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज, एंड इट्स फॉल इन अल्ट्रा वायलेट रीजन।
कौन से रीजन में फॉल कर रही है ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में. सो फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइमन एंड इट्स फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन. सेकेंड सीरीज इज बाल्मर. Second series is Balmer and its fall in visible region. Visible region. First is Lyman series which falls in ultraviolet region. Second is Balmer series which falls in visible region. Third is P. P for Paschen. B. Bracket. And FED fund, but here it is P fund. ठीक है, जिसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे फंड. सो these three falls in infrared region. These three falls in infrared region. So here are 5 different series which we get in the spectrum of the hydrogen: Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, Antifund or Fund, and these region falls in ultraviolet region, visible region and infrared region. Clear? Now हमें बहुत डिफरेंट लाइंस मिली और डिफरेंट लाइंस आपकी क्या थी, डिफरेंट आपके वेवलेंथ पे बेस थी. सपोज इफ वी टॉक अबाउट द विजिबल रीजन, अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो विजिबल रीजन फॉल्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. मींस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जितनी भी वेवलेंथ होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, विजिबल रेंज के अंदर. सो अगर हम एक पर्टिकुलर लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे वो वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है एंड दैट फॉर्मूला वाज गिवन टू अस बाय रेडबर्ग. वो जो फॉर्मूला हमें दिया वो किसने दिया, रेडबर्ग ने, इन रेडबर्ग फॉर्मूला. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी about the Rydberg formula in the emission spectrum of hydrogen. Rydberg formula. Now Rydberg is a scientist. In 1890 Rydberg gave a simple theoretical formula to calculate the wavelength of a line or to calculate the wavelength of a particular line. 1890 में रेडबर्ग ने हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लाइन के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दिस इज दैट फॉर्मूला. नाउ न्यू बार, व्हाट इज न्यू बार, वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ. यस, इट इज वेव नंबर. सो न्यू बार इक्वल्स टू आर 1 n1 square minus 1 upon n2 square. Now what is R here? R is the Rydberg constant and its value is 109677 per centimeter. जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 109677 पर सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज N1 N2? N1 एंड N2 आर डिफरेंट लेवल्स, लेकिन आप लोगों ने एक बार ध्यान रखनी है यहाँ वो क्या है. इफ वी टॉक अबाउट लाइमन, N1 इज ऑलवेज 1. इफ वी टॉक अबाउट बाल्मर, N1 इज ऑलवेज 2. इफ वी टॉक अबाउट पाशन, N1 इज ऑलवेज 3. इफ वी टॉक अबाउट ब्रैकेट, N1 is always 4, and if we talk about fun, N1 is always 5. ठीक है. In case of Lyman, what is N2 then? N2 क्या होगा, N2 में भी 2, 3, 4, 5, 6 anything. ठीक है, but N1 is always 1. Lyman के केस में N1 हमेशा 1 होगा, N2 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है. In Balmer N1 is 2 और N2 हमारा क्या होगा 3, 4, 5, 6. It means in Balmer 1 नहीं आएगा हमारा. Similarly in partial 1 and 2 will not come. In bracket 1, 2, 3 will not come. In fund 1, 2, 3, 4 will not come. So this you have to kept in your mind that for different series N1 is fixed,
but n2 is any value which is greater than n1 value. Clear? But if we talk about hydrogen-like particles, for example, if I talk about He positive और Li2 पॉजिटिव, ठीक है, Li2 पॉजिटिव, अगर मैं Li2 पॉजिटिव की बात करती हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Li2 पॉजिटिव? 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट लुक लाइक हाइड्रोजन. ये किसके जैसा हो गया? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन 1 electron. So for hydrogen like particle, this formula becomes nu bar equals to R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square multiplied by Z square. Now what is the Z here? This Z is also we have studied when we studying the symbol, how we write the symbol of a particular atom. हम किसी भी atom के symbol को कैसे represent कर सकते हैं? तो हमने क्या कहा था? X is that particular atom. नीचे हम क्या लिखेंगे? Atomic number which is represented by Z, and ऊपर हम क्या लिखेंगे? Mass number which is represented by A. So this Z is the atomic number. ठीक है. सो सपोज अगर हम Li पॉजिटिव 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Z में क्या आ जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर. अगर हम He पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो व्हाट द Z becomes 2 स्क्वायर. सो Z इज अटोमिक नंबर एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. इट मीन्स विच कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? नाउ ये जब आप लोग पढ़ोगे रेडबर्ग फॉर्मूला, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, इन सर्टेन क्वेश्चन there is a question that calculate the wavelength of the limiting line. Calculate the wavelength of the limiting line. Now what is this limiting line? ये जो limiting line होती है वो क्या होती है? Now what is limiting line? When n2 is taken infinity. ठीक है, n2 हम क्या लेते हैं? जब infinity लेते हैं in any series, किसी भी सीरीज में जब हम n2 की वैल्यू को इंफिनिटी लेंगे, एंड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ n2 इंफिनिटी, इफ वी कैलकुलेट द वेवलेंथ और दैट लाइन इज नोन एज लिमिटिंग लाइन. सो द लाइन विच इज ऑब्टेन व्हेन वी आर टेकिंग n2 इंफिनिटी इन एनी सीरीज, दैट लाइन इज नोन एज लिमिटिंग लाइन. ईदर इन लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, फंड, किसी भी सीरीज में आप n1 पर्टिकुलर लेंगे, लेकिन n2 को अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो जो भी वहां पे वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, दैट वेवलेंथ रिजेंबल द लाइन विच इज लिमिटिंग, मीन्स लिमिटिंग लाइन. नाउ वील डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेडबर्ग फॉर्मूला. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर emitted when an electron in the hydrogen atom jumps from third orbit to the ground state. It means हमने क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और उसके साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ. एंड दैट वेवलेंथ वी हैव टू कैलकुलेट इन नैनोमीटर. और ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट. यानी इट मीन्स हेयर जो n है हमारा, दैट इज 3 एंड n इज ग्राउंड स्टेट इज, आपका जो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 1. सो हेयर इज फर्स्ट वी कैलकुलेट द न्यू बार. हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू बार. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? इज इक्वल्स टू R 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now what is R here? R is 109677, that is centimeter inverse. Now what is n1? n1 is 1 square minus what is n2? n2 is 3 square. ठीक है, बिकॉज थर्ड ऑर्बिट से वो कहाँ जंप कर रहा है? हमारा ग्राउंड स्टेट में. सो ग्राउंड स्टेट हमारा 1 होगा और थर्ड ऑर्बिट हमारा क्या हो गया? 3. नाउ व्हेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट न्यू बार इक्वल्स टू 97490.7 सेंटीमीटर इनवर्स. हमें क्या मिलेगा? 97490.7 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस वी गेट, but we have to calculate the frequency and wavelength. Now what is wavelength? Wavelength equals to 1 upon
न्यू बार. So 1 upon nu bar means 1 upon 97490.7. ठीक है. Now on solving this we get 103 into 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर. बट वेवलेंथ हमने किसमें कैलकुलेट करनी है? इन नैनोमीटर में. सो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इन मीटर. इट बिकम्स 103 into 10 to the power minus 9 मीटर. दैट इज इक्वल्स टू 103 नैनोमीटर. यानी जो हमारी वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 103 नैनोमीटर. नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी? फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा. नाउ व्हाट इज c? c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इट इज मीटर पर सेकेंड. तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं देंगे, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे, दैट 103 इंटू 10 to the power minus 9 meter. Clear? Because light is also present in meter, this one is also present in meter. तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ना कि ये वाली, because it is in nanometer. Now on solving this, what we get? We get 2.91 into 10 to the power 15 per second. So in this way we'll able to calculate the frequency and the wavelength of a radiation in which the electron jumps from third orbit to the ground state. Now we'll do the next numerical. Now this is our second type of question. Calculate the wavelength of the spectral line obtained in the spectrum Li2 positive. So यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about Li2 positive, but it is like hydrogen. So hydrogen like species. So we'll use the formula for hydrogen like species. And when the transition takes place between two levels, दो levels के बीच में transition हो रहा है, whose sum is 4 and the difference is 2. It means N1 और N2 की वैल्यू हमें यहाँ पे exactly नहीं given है. We have to find out the value of N1 and N2. Now suppose the first level is N1, second level is N2. Their sum is 4. It means N1 plus N2 is equals to 4 and their difference is 2. Now differences 2 में हम कभी भी N1 minus N2 नहीं करेंगे. We never do N1 minus N2. हम ये कभी भी नहीं करेंगे because N2 is greater than N1. So we always do N2 minus N1 और difference हमारा कितना आ रहा है? 2. Clear? From these two equation when we solve, हम ये solve करेंगे, N1 and N1 cancel हो जाएगा. It becomes 2 N2 is equals to 6. So N2 is equals to 3. N2 हमारा कितना आ जाएगा? 3. And when we put the value of N2 in any of the two equation, what we get? N1 equals to 1. So first of all हमने क्या कैलकुलेट करना है? The value of N1 and N2. N1 हमारा कितना आ गया? 1. N2 हमारा कितना आ गया? 3. N1 is equals to 1 and N2 is equals to 3. Now we'll use the formula nu bar equals to R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Is we have to add anything in this formula? Yes, we have to add Z square because here we are dealing with hydrogen like species, not with the hydrogen. And for lithium Z is equals to 3. Clear? So यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? Nu bar equals to 109677 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square multiplied by 3 square. Clear? Now एक तो ये मेथड है, आप फर्स्ट न्यू बार फाइंड आउट कीजिए, देन न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा से आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए? लेमडा. और इफ यू डोंट वांट टू डू टू कैलकुलेशन, जस्ट डू हियर 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 109677 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर. क्लियर? नाउ जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी सॉल्व होगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा लेमडा इंस्टीड ऑफ न्यू बार, क्योंकि हमने न्यू बार की जगह पे क्या लिख दिया है? 1 अपॉन लेमडा. सो व्हाट वी गेट? वी गेट लेमडा, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट
lambda equals to 1.14 into 10 to the power minus 6 centimeter. So in this way you can able to calculate the wavelength of any hydrogen like species, whether the levels are given to you or not. So the formula is nu bar equals to R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square for hydrogen and multiply by Z square for hydrogen like species. That's all for today. Do more and more numericals which are based on Rydberg constant, the numericals of NCERT and the numericals of high order thinking. I'll see you in my next video with a new topic.